Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. In this video I will explain you class 8 science microorganism friend and foe. So first of all I will tell you what are microorganism. You know all living organism vary in form and size. कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत बड़े होते हैं जैसे एलिफेंट है एंड सम ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल लाइक आंट्स बट सम ऑर्गेनिज्म आर वेरी वेरी स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते. बट इफ़ वी वांट टू सी देन वी यूज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ माइक्रोस्कोप. हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. दीज आर माइक्रोस्कोपिक. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोब्स, इसे हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. यूनी मीन्स क्या होता है? सिंगल. तो सिंगल सेल के, एक सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी मीन्स ज़्यादा, एक मोर देन वन. तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल के भी बने होते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड द साइंटिस्ट who study microorganism are called microbiologist. Now, where do microorganism live? Microorganism रहते कहाँ हैं? Microorganism are found everywhere. ये सब जगह होते हैं. They are found in every kind of environment like air, water, soil, and even they are found in the bodies of human being. Human being की bodies में भी पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम काइंड ऑफ टेम्परेचर. एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा. अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब भी ये सरवाइव कर सकते हैं. मीन्स इफ़ इट इज़ आइसी कोल्ड. आइसी कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लाइक पोलर रीजन है. एंड इफ़ इट इज़ वेरी हॉट देन और एंड इफ़ इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट ऑल्सो. सो they can survive in extreme kind of temperature because they can form a covering. अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? सिस्ट. तो ये सिस्ट के अंदर चले जाते हैं और आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ आई विल टेल यू वन एक्टिविटी that will show these microorganisms are found in water and soil. For this activity we take water from any pond and take a few drops of this water on the slide and observe under the microscope. Then you will see a large number of microorganisms found in it. Similarly, we take some soil from any pond, from any garden and dissolve in some water. Then take few drops of this water and observe under the microscope. In this case also you will find a large number of microorganisms. So this activity shows that microorganisms are found in water and soil. Now microorganism can be divided into 5 types: bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses. So I will explain you one by one. First of all, bacteria. Bacteria are simple living organism which are found all around us. Bacteria जो होते हैं simple organism होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं. They are mostly single cell. मतलब ये एक single cell के होते हैं, एक सेल के बने होते हैं. But they can live together. बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ मिल के रहते हैं and कैन फॉर्म ए कॉलोनी. एक कॉलोनी का शेप बन जाता है एंड एक सिंगल कॉलोनी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. एंड दीज बैक्टीरिया मे बी हार्मफुल एज वेल एज यूज़फुल ऑल्सो, जो हम आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे. नाउ बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर शेप. लाइक कोकस.
Bacteria, it is of spherical shape. Then Bacillus, it is rod shape. Vibrio, it is comma shape. Now next group is algae. These algae are simple plant-like organism and they may be unicellular or multicellular and they are mostly found in water. They contain a green color pigment called chlorophyll. Chlorophyll के बारे में आप जानते होंगे. It is a green color pigment found in plants, green plants में होता है and through this chlorophyll plants can make their own food by the help of photosynthesis. Similarly algae में भी ये chlorophyll होता है और ये अपना food खुद बना सकते हैं by the process of photosynthesis. And you can see these algae on the surface of water, on the bark of trees, in the moist soil, and they are found in water. Some examples are diatom, Fucus, Volvox. Now next group is fungi. These are fungi are non-green organism and they do not have any chlorophyll and so they cannot make their own food. And these also may be unicellular or multicellular. और ये ग्रो कहाँ करते हैं? जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है या जो थोड़ी सी मॉइस्ट प्लेस होती है, गीली जगहें होती हैं. इसके एग्जांपल लाइक ईस्ट हो गया. ईस्ट जो है कहाँ यूज़ किया जाता है? बेकरीज़ में टू मेक ब्रेड एंड केक. ब्रेड और केक बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट इज़ राइजोपस. राइजोपस कॉमन नेम इज़ ब्रेड मोल्ड. आपने देखा होगा जब रेनी सीज़न होता है तो हमारी ब्रेड जो होती है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्रेड के ऊपर एक वाइट कलर के ब्लू कलर के पैचेस बन जाते हैं. इट इज़ ब्रेड मोल्ड. नेक्स्ट इज़ एगरिकस. इट इज़ मशरूम विच आर eaten as a vegetable. Now next group is protozoa. These protozoa are unicellular and microscopic. मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड these look like animals. एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं. They can move in water and they can कैच देयर फूड एंड फीड ऑन इट. मतलब ये पानी में ही रहते हैं, पानी में ही अपना फूड को कैच करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये फीड करते हैं. दे कैन अकर इन कॉलोनीज़. कुछ प्रोटोजोआ कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब मिल के रहते हैं. बट कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट आपको पता है कि वो किसी होस्ट पे रहता है, किसी दूसरी की बॉडी पे रहता है और उसी से अपना ये फूड लेते हैं. तो ये इसका पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम होता है एंड दैट कॉजेज़ मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स. हम लोगों में जो मलेरिया की डिजीज़ होती है वो मॉस्किटो के काटने से होती है. बट जिस मॉस्किटो में ये प्लाज्मोडियम होता है वो उसी मॉस्किटो के बाइट से ही मलेरिया होता है. एंड व्हेन इट एंटर्स प्लाज्मोडियम इन आवर बॉडी देन इट कॉजेज़ मलेरिया. देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रोटोज़ोआ लाइक पैरामीशियम, trypanosoma and amoeba. These are all unicellular. Now last group is viruses. These are smallest microorganism and can be seen with the help of electron microscope. मतलब ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप होते हैं उससे थोड़ा ही डिफरेंट होता है. इसमें बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें जो हैं वो हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं. एंड दिस कॉजेज़ मेनी डिजीज़ लाइक वायरल फीवर, फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड नाउ डेज़ आपको पता है कोविड-19 जो कोरोना वायरस से हो रहा है. एंड दिस वायरसेस डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर. इनका कोई एक सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है. आपको पता है जितने भी सेल होते हैं सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सब
ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, बट वायरस में कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। सो जब तक ये ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह होते हैं। बट व्हेन दे एंटर इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी की बॉडी में एंटर होते हैं, तब ये लिविंग की तरह बिहेव करने शुरू कर देते हैं। एंड दे टेक द एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में जाते हैं उससे ये एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं। एंड दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस होना शुरू कर जाते हैं, इनके नंबर जो हैं वो सडनली बढ़ने लगते हैं किसी की बॉडी में जाने के बाद। एंड दिस सो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये वायरस जो होता है ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में, मतलब ये एक तरह से कनेक्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग को। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ वायरस लाइक पोलियो वायरस दैट कॉजेज पोलियो। पोलियो आपको पता है, जो बच्चों में 5 साल तक की बच्चों में ये डिजीज़ हो जाती है, पैर ख़राब हो जाते हैं, बट नाउ डेज़ ये ख़त्म हो गई है ये बीमारी। देन इन्फ्लुएंज़ा वायरस दैट कॉजेज इन्फ्लुएंज़ा। एंड नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेग है। नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू सब्सक्राइब इट, एंड नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।